Hey guys, welcome back to the channel. Today we will do analysis of whole apparel industry. तो इसमें ऑलमोस्ट 8 प्लेयर्स यहाँ पे है जो मैंने यहाँ पे रखे हैं एंड इसमें से कुछ प्लेयर्स का Q2 FY26 का अपडेट भी आ चुका है. सो ऑफिशियली अवर Q2 FY26 सीजन हैज बीन स्टार्टेड एंड I'll make a separate playlist for Q2 FY26 and I'll put that video here. But as far as today's video is concerned, will be more talking about the Q1 FY26 because this industry we are covering for the first time on this channel. And I'll also talk about the Q2 FY26 update which has come out for some of these players basically. Let's understand this industry and let's get started with the first company here. So यहाँ पे मैंने जो companies रखी है, this is based upon their pace of the sales growth basically, right? So the first company is V2 Retail. It's a value fashion brand basically. And if you see here the QIFY26, they posted around 632 crores of revenue, right? And that sales growth was around 52%, which is huge. Now if you compare this sales growth with the peers, so V2 was winning the race, and it is winning the race since the second player has 37% of the growth and the last player has 1%. So V2 is way ahead of them. And if you see the Q2 FY26 update, they posted phenomenal 86% jump in the sales growth. So that we'll talk. So let's understand further on this. So V2 was like value growth as well as volume growth. 50% का volume growth भी है यहाँ पे. EBITDA growth is like 63%, and EBITDA margin, which is pre-IND AS margin as per the company. You can search more on this. What is the difference between pre-IND and post-IND? So you'll understand why the post-IND EBITDA margins are inflated and pre-IND EBITDA margins are not. So that is just additional information for you to understand more on this one. So this 8.3% EBITDA margin is there. PAT margin is 60. PAT growth is 62%. So they got operating leverage here also, and PAT margin is almost around 4.8%. Again, basis the pre-IND. EPS का भी ग्रोथ अच्छे से यहाँ पे हुआ है, विच इज 62%. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड कि यहाँ पे इनके ऑलमोस्ट अभी आफ्टर Q2, तो मैंने ये टोटल जो नंबर यहाँ पे रखा है दैट इज पोस्ट Q2 जो अपडेट दिया है. स्टोर्स हैव बिकम लाइक 259 टोटल स्टोर्स इनके हो चुके हैं यहाँ पे. एंड इफ यू सी हियर 259 स्टोर्स में टोटल जो स्क्वायर फीट उनका है 27.9 लाख स्क्वायर फीट एरिया उनके पास अवेलेबल है, राइट. सो दिस इज जस्ट अ मेट्रिक विच दे यूज, क्योंकि ये लोग ना इनका एक मेट्रिक है यहाँ पे. वो बोलते हैं कि पर मंथ स्क्वायर फीट के हिसाब से पर मंथ रेवेन्यू कितना हुआ, वो एक मेट्रिक है. तो उसकी उसके लिए मैंने यहाँ पे ये पैरामीटर रखा हुआ है. सो 259 स्टोर्स Q1 में उन्होंने ऑलमोस्ट लाइक 27 स्टोर्स नेट स्टोर्स उन्होंने ओपन किए. तो उसमें क्या 28 स्टोर ओपन किए थे, एक क्लोज किया था. सो नेट स्टोर्स वेयर नेट स्टोर एडिशन वाज 27, and in Q2 they added another 43 stores. So total 70 stores they added in first half of 2026. So that is the story here. ठीक है. तो total stores now they are like 259. Now if you're talking about the stores, let's understand the same store sales growth और like to like growth कितना है यहाँ पे. तो यहाँ पे ना दो मेट्रिक है, एक तो रिपोर्टेड होता है एंड देन नॉर्मलाइज्ड होता है. सो ऑलवेज कंसिडर नॉर्मलाइज्ड व्हाइल स्टडीइंग दिस काइंड ऑफ इंडस्ट्री, बिकॉज इसमें क्या है ना, सीजनैलिटी है, थोड़ा सा सीजनैलिटी इन टर्म्स ऑफ द फेस्टिवल्स. तो लेट्स से इफ यू आर कंपेयरिंग ईयर ऑन ईयर एंड लास्ट ईयर, लेट्स से वो क्वार्टर में मान लीजिए Q1 FY26 में कोई मान लीजिए कोई जैसे गुड़ी पाड़वा है या फिर कोई और फेस्टिवल है वो अगर आया है, एंड इन Q1 FY26 में दैट फेस्टिवल इज नॉट देयर, दैट मीन्स व्हाट, आप उसको सीधा एप्पल टू एप्पल, इट्स नॉट कंपैरिजन, आप उसको कंपेयर नहीं कर सकते. इसलिए रिपोर्टेड कभी कभी कम होता है एंड देन नॉर्मलाइज ज्यादा होता है, और कभी कभी नॉर्मलाइज्ड कम होता है एंड रिपोर्टेड ज्यादा होता है. बिकॉज जैसे इस क्वार्टर में दुर्गा पूजा आ गई, राइट. नवरात्रि जो फेस्टिवल था वो सितंबर के एंड में, मतलब लास्ट वीक में आ गया. वेर एज लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में नवरात्रि वॉज नॉट देयर, इट वॉज इन अक्टूबर. ठीक है. तो उस केस में क्या होता है कि आपका रिपोर्टेड ज्यादा हो जाएगा, बट इफ यू नॉर्मलाइज इट,
और एडजस्ट अगर करते हो उस फेस्टिवल को, तो आपका नॉर्मलाइज्ड कम हो जाता है। तो अभी क्या करना है इसमें, रिपोर्टेड को निग्लेक्ट करना है एंड देन फोकस ऑन द नॉर्मलाइज्ड which is 10% same store sales growth. That I think it is, I hope it is clear. Then if you see here, मैंने यहाँ पे revenues per square feet लगाया, that is the metric which they are reporting. तो it was like in Q1 it was like 960 rupees per square feet monthly rate है ये, and in Q2 it is like 930, थोड़ा डिक्रीज हो गया है। ठीक है। नाउ व्हाट गाइडेंस दे हैव गिवन फॉर FY26 दैट दे वांट टू अचीव 50% ग्रोथ। नाउ वील आल्सो अंडरस्टैंड ये 50% ग्रोथ कैसे आ रहा है, क्यों वो लोग बोल रहे हैं, वो थोड़ा सा देख लेंगे। एंड देन सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ दे वांट टू टारगेट 10%, विच विच दे अभी फर्स्ट हाफ में उतना ही है 10%, ये तो ऑन ट्रैक ये लोग चल रहे हैं। एबिटा मार्जिन का जो है वो मैंने जो बोला आपको, दैट इज अगेन 10% एबिटा मार्जिन दे वांट टू अचीव, एंड 100 to 120 स्टोर्स दे वांट टू ओपन। तो अब तक कितने कर चुके हैं, 70 कर चुके हैं। तो ये मतलब ये अचीव कर सकते हैं इजीली, दैट्स नॉट एन इशू। ठीक है। तो ये ग्रोथ मेंटेनेंस जो है वो तो पॉसिबल है 50%। नाउ क्वेश्चन इज, विल दे बी एबल टू मेंटेन or will they be able to grow more than 50%? Because they have proved that in Q2 FY26 they posted a significant jump of 86%। ठीक है। तो ये एक चीज है। अभी देख लेते हैं कि इन्होंने Q2 FY26 में क्या अपडेट दिया। तो 703 करोड़ का सेल्स ग्रोथ पोस्ट किया है। क्वार्टर क्वार्टर ज्यादा इंक्रीज नहीं है, बट ईयर ऑन ईयर इट्स 86% जंप यहाँ पे दिखता है। रिपोर्टेड सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ रिपोर्टेड 23%, जैसे मैंने आपको बताया, बट नॉर्मलाइज इज 10.3%। एंड पर स्क्वायर फीट रेवेन्यू इज 938 रुपीज, एंड 43 stores they added in the Q2 FY26, that's the update, which is great actually। इनका प्रेजेंस कहाँ पे है अगर आप देखोगे, तो ये 5-6 स्टेट्स में इनका प्रेजेंस है, लाइक बिहार, यूपी, झारखंड, कर्नाटका, मध्य प्रदेश, आसाम एंड उड़ीसा, ऑफ विच आई थिंक बिहार में 39 या 40 स्टोर्स है इनके। लार्जेस्ट प्रेजेंस इनका बिहार में ही है। तो नेक्स्ट जो फेस्टिवल्स है बेसिकली दिवाली, और बिहार में जो होता है उत्तर प्रदेश और बिहार में, दैट इज छठ पूजा, will drive the growth actually for this particular company। now let's understand ये 50% का ग्रोथ कैसे है। तो अगर यहाँ पे मैंने एक छोटा सा कैलकुलेशन किया है, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस कैलकुलेशन। सो टिल डेट वी टू रिटेल के पास कितने स्टोर्स है, 259 स्टोर्स है, तो 227 लाख स्क्वायर फीट का उनका एरिया है। ठीक है। तो 70 स्टोर्स उन्होंने ऐड किए हैं FY26 में, फर्स्ट ऑफ FY26 में। तो मैंने क्या किया, 26 जो 259 में से 20 जो 70 है उनको निकाल दिया, दैट इज नेट उनके अब तक जो स्टोर्स है जो FY25 में ऐड किए थे, जो फुल्ली फंक्शनल है, वो वी कैन से दैट 100% यूटिलाइजेशन पे चल सकते हैं उनका। वो 189 है। वो मैंने क्यों पकड़ा है, क्योंकि मुझे 189 का स्क्वायर फीट निकालना है, दैट कम्स अराउंड 19 लाख स्क्वायर फीट, वो उतना एरिया आता है। अभी मैंने यहाँ पे क्या किया है, जो पर स्क्वायर फीट जो है दैट इज अराउंड 930 मैंने पकड़ा है यहाँ पे। अगर आप देखोगे यहाँ पे पर स्क्वायर फीट इज अराउंड 960, बट फॉर कंजर्वेटिव कैलकुलेशन आई गॉन अहेड विद द 930। तो उन वो 189 स्टोर्स में से जो रेवेन्यू, ईयरली रेवेन्यू आता है, दैट इज अराउंड 2100 करोड़ का रेवेन्यू आ सकता है। ठीक है। दैट इज पॉइंट नंबर 1 टू बी नोटेड। प्लस अभी ये लोग इस साल ये लोग 100 स्टोर्स ऐड करने की बात कर रहे हैं। ठीक है। 100 to 120, तो 100 पकड़ लीजिए। तो 100 स्टोर्स का अप्रोक्सीमेट जो स्क्वायर फीट आता है वो आता है अराउंड 10 लाख स्क्वायर फीट। और 10 लाख स्क्वायर फीट के हिसाब से ये लोग ऑलमोस्ट लाइक 837 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। अभी मैंने ये यहाँ पे कितना पकड़ा है, यहाँ पे भी 930 पकड़ा है कॉन्जर्वेटिवली। एक्चुअली है इनका कितना 965, बट कॉन्जर्वेटिवली 930। इसको अगर थोड़ा सा कम किया मैंने, क्योंकि ये लोग बोलते हैं कि जो नए स्टोर्स है वहां पे 25% लोअर पर स्क्वायर फीट रेवेन्यू अचीव होता है, देन यू कैन से लेट्स से 870 समथिंग लाइक दैट फिगर वो आता है। तो 800 करोड़ मोटा मोटी एक पकड़ लीजिए। तो ये टोटल FY26 में ये लोग कितना कर सकते हैं, अराउंड 2800 से 2900 करोड़ का रेवेन्यू ये लोग कर सकते हैं विद द करंट सेट ऑफ स्टोर्स। एंड इफ दे ऐड मोर स्टोर्स देन दिस रेवेन्यू कुड गो टिल 3000 ऑल्सो। ठीक है। ये एक मेट्रिक है। तो FY25 में इन्होंने किया है ऑलमोस्ट 1800 या 1900 करोड़ का रेवेन्यू किया है यहाँ पे। इसीलिए और ये 2800 अगर करोड़ है, तो मोटा मोटी ये रेंज में 50 से 55% का ये लोग रेवेन्यू ग्रोथ यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है। सो दिस इज हाउ दे आर टारगेटिंग। आई होप दिस कैलकुलेशन इज क्लियर।
इट्स वेरी सिंपल बेसिकली, आई एम नॉट श्योर एनीवन हैज एक्सप्लेन दिस पर्टिकुलर कैलकुलेशन कि 57% का गाइडेंस कैसे आ रहा है, ठीक है। सो अभी हमें क्या देखना है ना कि ये इन लोगों ने 86% का रेवेन्यू पोस्ट किया है, बट ये अगले सेकेंड हाफ में वेदर दैट 86% इज सस्टेनेबल और नॉट, क्योंकि हाई बेस आ जाता है। हाई बेस का अगर कंट्रीब्यूशन है तो वो 86% नहीं दिखेगा, बट एटलीस्ट इफ दे पोस्ट 50% दैट इज ऑल्सो गुड। So this is great set of numbers posted by this company, and if we understand this कि ये कैसे कंपनी आगे बढ़ रही है, क्योंकि ये क्लास लीडिंग सेल्स ग्रोथ दे आर पोस्टिंग। नाउ लेट्स एनालाइज द कंपनी नंबर 2 विच इज बाजार स्टाइल रिटेल। ये भी वैल्यू फैशन में ही है। इसने Q1 FY26 में पोस्ट किया है नंबर ऑलमोस्ट अराउंड 377 करोड़ का रेवेन्यू पोस्ट किया, विच इज 37% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ। नाउ कैची नंबर क्या है, 71% Q2 FY26 में इन्होंने ग्रोथ पोस्ट किया है, ठीक है, ये रिसेंट अपडेट है। सो 37% वाली कंपनी नाउ पोस्टिंग 71% वाला नंबर, विच इज ह्यूज। इट इज अगेन इन द सेम लाइंस ऑफ V2 रिटेल, सेम काइंड ऑफ बिजनेस मॉडल यहाँ पे है। अगेन यहाँ पे भी वैल्यू और वॉल्यूम ग्रोथ चल रहा है। एबिटा ग्रोथ 14%, 6.6% प्री IND एबिटा मार्जिन है। एंड देन पैट ग्रोथ इज अराउंड 531%, पैट मार्जिन 2.4%, एंड EPS ग्रोथ, तो यहाँ पे तगड़ा EPS ग्रोथ है, तगड़ा पैट ग्रोथ है यहाँ पे आया हुआ है, ठीक है। नाउ स्टोर्स नंबर्स, अगेन दिस इज इंटरेस्टिंग सेट। यहाँ पे भी ऑलमोस्ट लाइक इनके 250 स्टोर्स पोस्ट Q2 FY26 अपडेट के बाद हो चुके हैं। तो इन्होंने क्या किया है, Q1 FY26 में नेट स्टोर्स एडिशन हुआ है 18 का, और Q2 FY26 में अगेन नेट स्टोर एडिशन हुआ है 18 का। सो दे एडेड लाइक 36 स्टोर्स in first half of 2026. You can pause the video and see actually how the net store addition is. If we see the same store sales growth, the reported same store sales growth in Q1 FY26 was like -3%, and normalized is 11%. So हमें तो normalized ही consider करना है। And if you see the revenue per square feet, now this is very important. In case of V2 retail, that revenue per square feet was decreased, ठीक है, 960 से 930 हो गया। बट यहाँ पे वो स्क्वायर फीट रेवेन्यू पर स्क्वायर फीट 663 इन Q1 FY26 था, वो हो गया है 865 रुपीज। सो दैट इज ह्यूज जंप इन द रेवेन्यू रिकग्निशन और रेवेन्यू रियलाइजेशन। तो इन्होंने FY26 में क्या ग्रोथ नंबर पोस्ट किया, मतलब क्या गाइडेंस पोस्ट किया था, वो बोल रहे थे ऑलमोस्ट दे विल ग्रो एट अराउंड 25% ग्रोथ ईयर ऑन ईयर, ठीक है, बहुत कंजर्वेटिव ग्रोथ है। नाउ Q1 they posted around 37%, Q2 73%, एंड नाउ लेट्स सी, ये तो मेरे हिसाब से एक्सीड होने वाला है। लेट्स सी हाउ इट विल एक्सीड, ये भी अंडरस्टैंड कर लेते हैं। सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ दे वांट टू प्लान, उनका टारगेट है 7 to 8%। तो अभी तक तो वे नॉर्मलाइज्ड में ये लोग चल रहे हैं 11% में, और 40 to 50 स्टोर्स एनुअली इनका टारगेट है ओपन करने का। अभी जो Q2 में अपडेट आया है वो क्या है, 70%, 71% ग्रोथ है, दैट इज ह्यूज। सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ रिपोर्टेड कितना आया है, 22% आया है, बट नॉर्मलाइज्ड इज 19%। नाउ लुक एट दिस, सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ दे वांट टू टारगेट 7 to 8%। Q1 में 11% था, Q2 में 22% है, एंड नॉर्मलाइज्ड इज 19%। सो 11% in Q1, 19% in Q2. If you compare with the V2 retail, it is 10%. Now this one is 19%. So growth, same store sales growth, like to like growth is definitely, it's great in बाजार स्टाइल रिटेल। ये पैरामीटर मुझे इस कंपनी का सबसे अच्छा लगता है। एंड ऑल्दो सेल्स ग्रोथ जो है वो इट्स लोअर देन V2 रिटेल, बट स्टिल these पैरामीटर्स आर वेरी गुड। सो पर स्क्वायर फीट नंबर भी बहुत अच्छा है, 865 रुपीज, और 40 स्टोर्स इनका अपडेट है, इन्होंने ओपन कर लिए है, ठीक है, फर्स्ट हाफ में। सो लेट्स अंडरस्टैंड दिस। तो ऑलमोस्ट लाइक 40 to 50 स्टोर्स का करने का ये था, लेकिन ऑलमोस्ट मैंने कितना बोला, 36 स्टोर्स तो इन लोगों ने ओपन ही कर लिए। ये कहाँ पे, दिस इज लाइक ईस्ट इंडिया फोकस, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, आसाम एंड बिहार, इसी में है। तो यहाँ पे भी ये दोनों कंपनीज में एक्चुअली एक्सपांशन अच्छा हो सकता है, स्केल अच्छा हो सकता है। तो देर इज अ लॉट ऑफ रूम टू ग्रो हियर फॉर बोथ दिस कंपनी। सो बोथ ऑफ बो दीज कंपनीज आर डूइंग रियली ग्रेट। तो 259 स्टोर्स, सॉरी, अभी लेट्स अंडरस्टैंड द गाइडेंस यहाँ पे बाजार स्टाइल का कैसे है।
तो देर आर अराउंड 250 स्टोर्स ऑफ विच 36 दे रिसेंटली एडेड इन। तो मैंने क्या किया, 214 स्टोर जो है विच आर फुल्ली फंक्शनल, उनका उसका स्क्वायर फीट आता है अराउंड 18 लाख स्क्वायर फीट। तो 250 स्टोर्स का स्क्वायर फीट अराउंड 22 लाख स्क्वायर फीट। सो दिस इज जस्ट अ ग्रॉस लेवल गेस्टिमेट बेसिकली। तो 18 लाख स्क्वायर फीट के हिसाब से 214 जो FY 26 में जो स्टोर्स खुले हैं वो दे कुड जनरेट रेवेन्यू ऑफ अराउंड 1400 करोड़ का। और जो बचते हैं, मतलब अभी इन्होंने 36 स्टोर्स तो खोल लिए, तो मैंने क्या किया है, एक 50 नंबर अज्यूम किया है कॉन्जर्वेटिव कि चलो FY 26 में ये लोग 50 स्टोर्स खोल सकते हैं। तो 50 स्टोर्स का ऑलमोस्ट 5 लाख स्क्वायर फीट आता है, और 5 लाख स्क्वायर फीट का रेवेन्यू ये लोग ऑलमोस्ट लाइक 420 करोड़ जनरेट कर सकते हैं। विच टेक देम FY 26 में ऑलमोस्ट रेवेन्यू कितना हो सकता है, 1822 1824 करोड़। सो 1800 से 1900 करोड़ का रेवेन्यू आप पकड़ के चलिए। तो अगर ये 1800 करोड़ का फिगर भी अगर हिट करते हैं ना, तो दैट इज 36% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ। गाइडेंस कितना दिया है, 25% का। और कर कितना सकते हैं, अज्यूमिंग द करंट रेट। करंट रेट अगर ये चलता रहेगा, और आगे भी फेस्टिवल तो है ही, अभी Q3 में दिवाली है, छठ पूजा है। सी, ऑल दिस फैक्टर्स विल डेफिनेटली प्ले, और यहाँ पे दे कुड डू इजीली 36%। मेरे हिसाब से ये लोग कर सकते हैं, विच इज अगेन कंपनी विच हैज सेट 25%, बट डिलीवरिंग 36% इज ह्यूज। ठीक है। अभी मैंने ये नंबर 50 स्टोर्स पकड़ के किया है। वॉट इफ दे एक्सीड, चलो 50 नहीं, 50 तो उन्होंने अभी ऑलमोस्ट 36 तो अभी कर लिया है। तो व्हाट इफ दे डू लेट्स से 60 to 70 स्टोर्स अगर ऐड करते हैं, तो ये डेफिनेटली गाइडेंस और ज्यादा बढ़ जाएगा, है ना। ये ग्रोथ ज्यादा हो जाएगी। इसलिए जो रिजल्ट अब पोस्ट करेंगे वहां पे कॉन कॉल में ये सुनना बहुत जरूरी है कि गाइडेंस क्या है भाई। अभी आपने तो 36 स्टोर्स तो ऐड कर लिए, तो गाइडेंस क्या है स्टोर एडिशन का फॉर सेकेंड हाफ ऑफ 2026, उसके हिसाब से दिस नंबर विल गेट चेंज। ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट बाजार स्टाइल। नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट कंपनी विच इज अरविंद फैशन। नाउ इन अरविंद फैशन में क्या है, 1100 करोड़ का ऑलमोस्ट इन्होंने रेवेन्यू पोस्ट किया है इन Q1 FY 26। 16% का ग्रोथ है। तो ये अभी जो हम कंपनीज की बात कर रहे हैं वो दे आर लाइक अभी लेस देन 17% ग्रोथ वाली कंपनीज है, 17-18%। ठीक है। तो अरविंद फैशन 16% है, 16% का ही वॉल्यूम ग्रोथ है। एबिटा ग्रोथ इज 20%, एबिटा मार्जिन 12%। पैट ग्रोथ अच्छा है, पैट मार्जिन इज वेरी लो, 1.2%। एंड बिकॉज ऑफ द पैट ग्रोथ सिंस लास्ट ईयर में जो 1 करोड़ का ही जो प्रॉफिट हुआ था, तो यहाँ पे EPS ग्रोथ भी ज्यादा दिखाई देता है। 987 के एक्सक्लूसिव ब्रांड आउटलेट्स इनके हैं, विच इज गुड एक्चुअली। एंड 8.1% ये जो है ना, इनकी सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ है रिटेल में, विच इज ऑल्सो नॉट बैड एक्चुअली। बट एज कम्पेयर टू बाजार स्टाइल एंड विटो रिटेल, इट इज स्टिल लोअर सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ। नाउ इफ यू सी FY 26 का गाइडेंस कितना है, 12 to 15% करेंगे। मार्जिन एक्सपेंशन करेंगे ये लोग विथ ऑपरेटिंग लेवरेज, जो इस क्वार्टर में हमको दिखा, जैसे पैट बहुत ज्यादा बढ़ गया है, IPS बहुत ज्यादा बढ़ गया है, दैट इज ऑपरेटिंग लेवरेज दे गॉट। एंड दे वांट टू ओपन ऑलमोस्ट लाइक 150 स्टोर। सो दैट इज इट फॉर दिस कंपनी। 12 to 15% ग्रोथ वाला इंजन है। That is it about this company. I mean I genuinely don't have anything to add on this company because it's a low growth company basically. Now, moving on to the next company, which is Vedant Fashion. 281 crores का सेल्स किया है, हाईली सीजनल कंपनी है। एंड उनके सेल्स डिपेंड करते हैं वेडिंग सीजन के ऊपर। तो वेडिंग सीजन जैसे ही आता है, इन ये अच्छा करते हैं, जैसे वेडिंग सीजन चला जाता है ये बुरा करते हैं। ये सिमिलर है, आपको वही साइकिल पकड़नी है। 17.2% का ग्रोथ इन लोगों ने पोस्ट किया था Q1 FY 26 में। एंड EBITDA growth almost like 5.90. There is no operating leverage here. PAT growth is 12.40. नो ऑपरेटिंग लेवरेज दे गॉट इन Q1 FY 26। तो यहाँ पे थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट तो है, बिकॉज आई थिंक बहुत सारे क्वार्टर से कंपनी में कुछ ग्रोथ हो नहीं रही है। नीदर दे आर एक्सपांडिंग देयर स्टोर। सो पैट मार्जिन 25%, बहुत अच्छा पैट मार्जिन है। और एबिटा मार्जिन इज द बेस्ट इन क्लास एबिटा मार्जिन, एंड बेस्ट इन क्लास पैट मार्जिन वेदांत फैशन में मिलता है, क्योंकि ये आई थिंक वेडिंग वेडिंग ड्रेसेस ही बेचते हैं। तो वहां पे अच्छा मार्जिन इनको मिल जाता है यहाँ पे। ठीक है। देन इनके ब्रांड्स है ऑलमोस्ट लाइक 684 एक्सक्लूसिव ब्रांड आउटलेट्स है। एंड सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ देखिए आप, इसके जैसा सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ किसी का है क्या, 17.60।
सेम स्टोर सेल ग्रोथ नाउ, व्हाट बाजार स्टाइल हैज डन, बाजार स्टाइल ने कितना रिपोर्ट किया मैंने आपको बताया, जो सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ Q2 में 22%, दैट इज रिपोर्टेड एंड नॉर्मलाइज्ड इन 19%। सो उसके हिसाब से भी अगर कैलकुलेट करते हैं ना, तो आई थिंक बाजार स्टाइल हैज आउटप्लेड वेदांत फैशन, राइट। बाजार स्टाइल तो मतलब मासेस के लिए भी है, बट दे आउटप्लेड दिस वेदांत फैशन इन टर्म्स ऑफ द सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ, नॉर्मलाइज करने के बाद 19% का पोस्ट किया है। तो ये भी अब तक मतलब ये जो क्राउन था ना, ये वेदांत फैशन के साथ साथ था, लेकिन नाउ दे हैव टेकन द क्राउन। बाजार स्टाइल इज द डेफिनेटली विनर ईयर इन टर्म्स ऑफ द सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ। अगेन, दिस इज डिसअपॉइंटिंग, दे वांट टू रैंप अप द सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ, इसको बढ़ाना चाहते हैं रादर देन एक्सपांशन। स्टोर एक्सपांशन कोई करना नहीं है, रादर आई थिंक दे क्लोज सम ऑफ देयर स्टोर्स आल्सो। ठीक है, सो क्लोजली वॉच दिस वन, इट्स अ साइक्लिकल business. It booms near when the wedding season comes, so that's how you can enter into it. Then Trent, इट्स ये अपना मल्टी बैगर था लास्ट ईयर का, ऑलमोस्ट लाइक 4,800 करोड़ के रेवेन्यूज किए हैं, 19% का ग्रोथ है। इफ यू सी द हिस्टोरिकल ट्रेंड का ग्रोथ, आई थिंक 60% हुआ करता था, देन 50%, एंड देन स्लाइटली slowed down to 40%, and then 19% in Q1 FY26. तो दिस इज कमिंग ऑफ फ्रॉम द हायर बेस नाउ। यहाँ पे एबिटा ग्रोथ इज अराउंड 21%, एबिटा मार्जिन 11%, पैट ग्रोथ 9% ही है, पैट मार्जिन 9% है, ज्यादा ऑपरेटिंग लेवरेज मिल नहीं रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो स्टोर्स नंबर कितने, ऑलमोस्ट लाइक 1,000 स्टोर्स, 1,043 टू बी प्रिसाइज स्टोर्स इनके हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ जो है ना, वो सिंगल डिजिट में आ गया है, एंड दैट इज डिक्लाइनिंग, बेसिकली दैट इज द हेडलाइन फॉर इट। एंड आई मीन ट्रेंड के लिए और कुछ ज्यादा है नहीं, बट ये लोग एक्सेलरेशन इन द फैशन कॉन्सेप्ट, ये जो है ये जो पॉइंट है, ये लोग कर रहे हैं नए नए डिजाइंस, देयर एम इज टू ब्रिंग न्यू डिजाइंस टू द स्टोर एंड देन ग्रैब द मार्केट शेयर। बट actually that is not happening because they are getting more competition from the V2 retail, Bazaar style, etc. ठीक है, so this is all about trend. Maybe this is a pivot point for them right now. 19% growth, maybe they can do more than this, okay, in upcoming quarters, but we need to track this one because they don't do any con call, it's just the PPT. Only thing we can do is to track this company. 19% से अगर ये अपसाइड में जाता है ना, तो डेफिनेटली यहाँ पे एक प्राइस में अपसाइड पॉसिबल है। Then next company, next to actually the sister companies, we can say that Aditya Birla Fashion and Aditya Birla Lifestyle. So Aditya Birla Lifestyle, I think this is the demerged entity from the from this group. तो ये दो अलग अलग एंटिटीज यहाँ पे हो गई है। तो बिजनेस भी थोड़ा थोड़ा अलग ही है, एक एक मासेस को सर्व करता है और एक जो है वो प्रीमियम सेगमेंट को सर्व करता है। तो 1,800 करोड़ का रेवेन्यू यहाँ पे आदित्य बिरला फैशन यहाँ पे पोस्ट किया है, लाइक 9% का ही सेल्स ग्रोथ है, 38% का एबिटा ग्रोथ, बट देर इज नो पैट। एक्चुअली दिस इज लॉस मेकिंग कंपनी, और ये बेसिकली है, आई थिंक दिस आदित्य बिरला फैशन इज पैंटालून्स। ठीक है, तो ये हाँ करेक्ट है, पैंटालून्स वाला ही, उसमें कोई कोई एबिटा सॉरी कोई सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ है नहीं, फ्लैट है बिल्कुल, ऑलमोस्ट 3% है। तो ज्यादा कुछ यहाँ पे बोलने से है नहीं, यहाँ पे जस्ट एथनिक वेयर में लाइक 25% से एथनिक वेयर ग्रो कर रहा है, बट दैट इज जस्ट आई मीन जस्ट अ पॉइंट टू हाईलाइट, but nothing is happening on the top line as well as the bottom line, so it's a still loss making company. Then next company is this Aditya Birla Lifestyle, which is another like 1,800 करोड़ का उसने भी किया है। ये डीमर्ज्ड है, तो अभी इसका ऑपरेशंस में इसका बहुत सारा टाइम जाएगा टू टू स्मूदन आउट द ऑपरेशंस। 3% का सेल्स ग्रोथ है, बहुत कम है। एबिटा ग्रोथ हार्डली 1% का है। पैट ग्रोथ इज एटलीस्ट, यहाँ पे पैट ग्रोथ तो है, 5% का पैट ग्रोथ है, एंड पैट मार्जिन 1.3%। सो आई थिंक दिस आदित्य बिरला लाइफस्टाइल इज बेटर कंपनी इन माय ओपिनियन देन द आदित्य बिरला फैशन, सिंस इट इज आई थिंक ये वैल्यू ब्रांड है, और इसके साथ इसके पास स्टोर्स भी बहुत ज्यादा है, लाइक 3230 ब्रांड स्टोर्स है इनके पास। एंड they added like 40 stores, they added in Q1 FY26, and let's see how this company does in future. like 15% यहाँ पे से स्टोर्स ग्रोथ है, और ये ग्रोथ जो है ना, ये कंसिस्टेंट है लास्ट 4 क्वार्टर से।
ठीक है, तो दिस इज कंपनी टू बी वॉच्ड फॉर। जैसे ही यहाँ पे you see the green shoot in terms of the increase in the pace of the sales growth along with the PAT growth. All right. So I think same store sales growth is very good here in terms of the Aditya Birla Lifestyle. Now the last company which we'll discuss today is Go Fashion. That is 223 crores का उन्होंने Q1 FY26 में रेवेन्यू पोस्ट किया है। 1% का ही सिर्फ ग्रोथ है यहाँ पे। एंड एबिटा मार्जिन इफ यू सी हियर इट इज लाइक -5%। यस, कोई ग्रोथ नहीं है यहाँ पे, पैट में भी कोई ग्रोथ नहीं है। तो यहाँ पे क्या ही मुझे बोलना है बेसिकली। 803 इनके एक्सक्लूसिव ब्रांड आउटलेट्स हैं। 26 स्टोर्स इन्होंने ऐड किए, बट एज लॉन्ग एज दे आर नॉट डूइंग, यहाँ पे टॉप लाइन में हार्डली 1% का ग्रोथ है, बॉटम लाइन में निगेटिव ग्रोथ है। तो नॉट श्योर हाउ दिस कंपनी विल डू। तो लो सिंगल डिजिट सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ का उनका गाइडेंस है, 120 टू 130 स्टोर्स दे वांट टू ऐड। वेर एज दिस आदित्य बिरला का मैं बोलना भूल गया, आदित्य बिरला लाइफस्टाइल जो है वह 15% सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ है, बट डबल डिजिट ग्रोथ दे आर प्लानिंग, एक्चुअली दिस इज गुड। सो एट द मोमेंट दे आर गोइंग एट 3% and double digit growth they are planning. So Q2 FY26 results is very important, Q2 and Q3, in order to affirm this understanding double digit कैसे करेंगे, 250 stores addition है। तो डेफिनेटली टर्न अराउंड में दिस आदित्य बिरला लाइफस्टाइल इज द वन टू लुक फॉर। सो इसमें से कौन जीत रहा है बेसिकली, ठीक है। तो ये कैसे पता चलेगा, तो अलग अलग पैरामीटर्स में अलग अलग कंपनी जीत रही है बेसिकली। सो इफ यू सी हियर the first two set of companies like winning on growth momentum and market share कैप्चर करने में कौन है, तो V2 रिटेल एंड बाजा स्टाइल। तो V2 रिटेल और बाजा स्टाइल में अगर आप देखोगे तो डेफिनेटली V2 रिटेल इज द विनर हियर विच इज ग्रोइंग एट 52% एंड रिसेंटली एट 86%, और बाजा स्टाइल 73%, राइट। तो इस पैरामीटर में तो यहाँ पे ये कंपनी जीत रही है। यू कैन पॉज दिस वीडियो एंड अंडरस्टैंड व्हाई दे आर विनिंग। सो आई हैव एक्सप्लेन्ड हियर इन डिटेल। नाउ ऑन विनिंग ऑन द प्रॉफिटेबिलिटी एंड प्रीमियम एक्सक्लूजन, तो यहाँ पे कौन जीत रहा है, तो यहाँ पे वेदांत फैशन एंड आदित्य बिरला लाइफस्टाइल ब्रांड, तो ये दो कंपनी जीत रही है यहाँ पे। यू कैन पॉज दिस एंड अंडरस्टैंड। And in terms of the third, that is winning on strategic turnaround, that is your Arvind Fashion and Aditya Birla Fashion and Retail, that is ABFRL, ठीक है। But overall in the whole market, definitely there is no doubt that V2 retail is the ultimate winner here, which is growing at around 86%, and annually they can grow at around 50 to 60%. Bazaar style retail, which is growing at around 71% in this Q2 FY26, they can grow at around 36% in my opinion. We have to track that annually. So these two companies, in my opinion, are like number one and number two in this particular sector, right? So this is all about this apparel industry. I think for the first time we covered these players in my channel, but I think we have covered it nicely in my opinion. So let's see if you understand it, and if you understood it properly, then give it a like, share, and subscribe, and do share with your friends also, so that I get a motivation to make more industry wise videos like this. So thank you so much, and I'll see you in the next video.